These are 4 question, 4 option. Distribute each option to each question. No question has 2 option, or no 2 question has 1 option. The last one is intersecting line. The question is asked about the intersecting parallel and coincident lines. So the answer is intersecting line for our last question. This was our last question. 2x plus 3y plus 7, 5x plus 6y. How? The question is how. Very simple thing is there. See here, take the ratio of x coordinate to the x coordinate, y coordinate to the y coordinate. And if these two ratios are equal, find x. See here, 2 upon 5 and 3 upon 6 are not equal. So lines are not, the lines are intersecting. When a1 upon a2, let me write the equations. a1x. See here, there are 4 options and 4 conditions. The first condition, intersecting a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. What is a1 b1? ab ab. So a1 b1, a2 b2, c1 and c2. The equation is a1x b1y plus c1 0 and a2x b2y plus c2 0. These are the two equations. a1x plus b1y plus c1 0, a2x plus b2y plus c2 0. Now a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, but the lines are intersecting. Next, parallel line. Second, a1 upon a2 equals to b1 upon b2. And the ratio is same. See here, parallel line. 2 upon 2 1, 3 upon 3 1, but not equals to c1 upon c2. कांस्टेंट का रेशियो उनके बराबर नहीं है. 7 upon 8. देखो 2 upon 2 1 है, 3 upon 3 1 है, रेशियो सेम है कोएफिशिएंट का, बट कांस्टेंट का रेशियो उनके बराबर नहीं है. तो पैरेलल लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन है. इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन. थर्ड, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ थर्ड लाइन? Perpendicular line, it depends on the slope. Product of the slope is negative. और डायरेक्टली बताता हूँ थर्ड लाइन में. ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2x plus 3y and 3x minus 2y. ये जो रेशियो है 2 upon 3 and 3 upon 2, ये जो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आता है. a1 upon a2 into b1 upon b2 is always -1. देखो 2 upon 3 and -3 upon -2, -1 आता है. तीसरा परपेंडिकुलर लाइन a1 upon a2 into b1 upon b2 -1. a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, intersecting. These two are equal but not equals to constant. Parallel line. And चौथा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आया है. 2 upon 4 1 by 2, 3 upon 6 1 by 2, 7 upon 14 is also 1 by 2. That is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. Coincident lines. See here, these are the 4 conditions. 4 conditions. पहली कंडीशन है कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ y रेशियो. इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए. पैरेलल लाइन के लिए द कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो y के कोएफिशिएंट के बराबर है बट नॉट कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर है. और तीसरा कंडीशन है x का कोएफिशिएंट लाइन. चौथा कंडीशन है ये सभी रेशियो इक्वल है. a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. इंटर कोइंसिडेंट लाइन मींस the equation will represent one and the same line. One and the same line. Equation will represent one and the same line. Equation will represent one and the same line.
So that's why the lines are coincident, or lines are parallel, or line are intersecting, or lines are perpendicular. Lines are for any two lines. You have to convert the equation in terms of general form of the equation of line. These are the shortcuts to find when lines are parallel, not necessary directly to find the slopes. Yes, it is related with slope. Screen तो मिटाया अभी हमने. Next question. Our question is y equals to 3x plus 7. 3x plus 7. Y is 3x plus 7. And the line is 2y plus px equals to 3. With these are the two lines. These are perpendicular. What is value of p? Then p equals to what? The question is for you. Rearrange करो. 3x minus y plus 7 0 पहला इक्वेशन. दूसरा है px plus 2y minus 3 0. अब परपेंडिकुलर का केस डालो. a1 upon a2 into b1 upon b2 is minus 1. यह स्लोप को प्रोडक्ट माइनस 1 लो 3 upon 1 3 into minus p upon 2 is minus 1. So p will be 2 by 3. स्लोप का कंसेप्ट लो. हमने जो कंसेप्ट लिया वो मत लो. टेक द कंसेप्ट्स ऑफ स्लोप. Perpendicular. Now same problem. For what value of p the lines are parallel? For what value of p the lines are parallel? 3 by 2. चेक करें कुछ गलती हो गई. See here your line is parallel नहीं अभी perpendicular का आंसर. For what value of p the lines are parallel? Parallel में जाइए अभी. Perpendicular आप लोग देख लो. Parallel. So y equals to 3x को लिखेंगे 3x minus y plus 7 0. 3x minus y plus 7. 2y plus px को लिखते हैं px plus 2y minus 3 0. For what value of p the lines are parallel? 6 या minus 6. 3 upon p will be minus 1 upon 2. P will be minus 6. Yes, minus 6. अभी यही क्वेश्चन चेंज होता है. क्वेश्चन का आंसर यही है -6. वर्डिंग ऐसा होगा. Which of the following value is not the value of p for which the lines are intersecting? कौन से वैल्यू p की होनी नहीं चाहिए तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी. p की वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए? अगर -6 हुई तो लाइन हो गए पैरेलल. तो लाइन की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए p की. तो लाइन्स विल बी ऑटोमेटिकली फॉर एनी अदर वैल्यू लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग अदर देन -6. यस पंकज. नो डाउट. ठीक है. Other than -6 the lines will be intersecting. These two lines. अभी क्वेश्चन आएगा. For what value of p the lines will be
परपेंडिकुलर पैरेलल हुए। अभी क्वेश्चन आएगा कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, द लाइंस विल बी इंटरसेक्ट अदर देन -6 फॉर एनी वैल्यू ऑफ p इट विल बी इंटरसेक्टिंग। अब क्वेश्चन आएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कौन सी भी वैल्यू लो p के दो लाइन कोइंसिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो रेशियो है वो बदलेगा नहीं, 7/-3 या चेक कर लो। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ अलग। अब यही लाइन का रिलेशन होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ओपन करेंगे तो यही रिलेशन यूज करेंगे। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल, तो याद रखो पैरेलल में कोएफिशिएंट वैसे रखना है और आपको जो कंडीशन दिया है उससे जाना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए चेक करता हूं, -2 3 से जाने वाली लाइन है बी 4b, AB is parallel, AB is perpendicular to, AB is perpendicular to 2x minus 4y is 3. So what is value of B? For what value of B? AB is perpendicular. कुछ नहीं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लो, आपको B के वैल्यू मिलेंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन? -6 दिखा दिया, परपेंडिकुलर बोला है। -6 ऐसे कैसे आएगा? चेक करो, B-3 अपॉन 4 माइनस प्लस 2 6 विल बी माइनस इंटू -2 अपॉन 4 विल बी -1। हाँ, पैरेलल के बारे में सोचा था। परपेंडिकुलर B-3/6। So for what value of B? It will be -1. देखो पहले का स्लोप है B-3/4 प्लस 2 6 और दूसरे का स्लोप है -2 अपॉन -4 यानी +1/2। सो 6 2 आर 12, उधर जाएंगे 12 प्लस 3। नहीं नहीं नहीं, B की वैल्यू आपकी मिल नहीं रही, राइट राइट वैल्यू नहीं मिल रही कभी किसी से भी। For what value of B? The lines AB is perpendicular to this line 2x minus 4y. यस नैनेश 15 होनी चाहिए, नहीं कैलकुलेशन करना है आपको। शॉर्टकट बताता हूँ, ये लाइन जब इसको परपेंडिकुलर है यस 15, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है -2 अपॉन -4 यानी 1/2, तो उसका स्लोप होगा -2। चेक करो सही आंसर क्या है, -9 है या कुछ है? फिर से 15 है, -9 है? पक्का? -9 या 15 है? -9 सिद्धार्थ, गुड, -9 आंसर है। ये है परपेंडिकुलर, ये कैलकुलेशन कर लो, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन में गलती होगी। यस 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 -9 वेदांत हरीश। चलो पैरेलल में क्या करेंगे? इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, चलो परपेंडिकुलर हुआ, पैरेलल में क्या करेंगे? पैरेलल में आंसर आया था B-3/6 will be 1/2 -2 upon -4, so B-3 will be 6/2, that is 3. Yes, B will be 6, value of B will be 6 पैरेलल के केस में। क्वेश्चन,
व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा. इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, देखो इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 70, इसको परपेंडिकुलर है here and passing through intersection of two lines. देखो क्वेश्चन, इसको परपेंडिकुलर लाइन है, इसे परपेंडिकुलर है, तो आपका काम स्लोप के लिए इसका यूज होगा. यू विल यूज इट. एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x minus y plus 2 0 and 3x plus y minus 10 0. सो इनके इंटरसेक्शन से जाने वाले और इसको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन. तो आपको क्या करना है, पहले ये परपेंडिकुलर का स्लोप देख लो. -3/4 इसका स्लोप आएगा, स्लोप होगा 4/3. 4/3 जो ऑप्शन में जिसका स्लोप 4/3 उसी ऑप्शन को आप देखिए, चेक करो उसी ऑप्शन को, और फिर इंटरसेक्शन के ऑप्शन में जाइए. चलो हम कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? आई विल फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. कुछ व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? कोई बताएगा मेथड क्या होती है? व्हाट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है. x minus y plus 2 and 3x minus y. रेशो कहाँ इक्वल है? इक्वल तो नहीं है ना रेशो. 1/3 and 1 minus 1. रेशो इक्वल नहीं. x minus y plus 2 and 3x plus y minus 10. बहुत सिंपल इक्वेशन है. साइमल्टेनियस से दोनों का सॉल्यूशन निकालो, दैट विल बी द इंटरसेक्शन. x minus y plus 2 0, 3x plus y minus 10 0. इसका साइमल्टेनियस से इंटरसेक्शन निकालो. आपके लिए यही मेथड बेस्ट है. एक डिटर्मिनेंट भी बेहतर मेथड है, बट वो आपके लिए डिफिकल्ट होगी. और इक्वेशन बनाओ परपेंडिकुलर लाइन का. परपेंडिकुलर में क्या होगा? 4x minus 3y. अब आपको कांस्टेंट फाइंड करना है. ये 4x minus 3y हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था उस तरह से, 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, माइनस. सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा. ये -7 की जगह कुछ दूसरा कांस्टेंट राइट साइड में आएगा. तो आपको इसका इंटरसेक्शन निकाला है. हाउ विल फाइंड निकालना? यू विल फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस. कैसे? सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन. 2 4 किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूशन करो, दोनों का ऐड करो, कैसे भी तरह से. 2 4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चेक करो. 2 4, 3 plus 4 4x minus y plus y cancel. 2 minus 10 minus 8. 4x minus 8 0. 4x is 8. x will be 2. x की वैल्यू 2 है, पुट करो इसमें. 2 minus y plus 2. 4 minus y 0, मतलब y is 4. so y is 4. 2, 4. अभी ये पॉइंट मिल गया है. किसी भी तरह से फाइंड करो, किसी भी मेथड से. 2 4 इसमें पुट करो. परपेंडिकुलर है ना, इसलिए 4x minus 3y. अगर पैरेलल होता है तो 3x plus 4y. 4x minus 3y में 2 4 पुट करो. 4 2s are 8 and 3 4s are 12. 8 minus 12. 4 2s are 8. 3 4s are 12. 8 minus 12 minus 4. 4x minus 3y is minus 4. 4x minus 3y is minus 4. That is your answer. उसको पैरेलल भी है और 2 4 से जाता भी है. मतलब 4x plus minus 3y plus 4 0. माइनस 4 इधर आके. कंसेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो. +4 नहीं, +4 लेफ्ट साइड में आने के बाद ये -4 इधर आता है तो +4 हो जाता है. यस, यू आर राइट.
+4 लेफ्ट साइड में आने के बाद होता है। इसको परपेंडिकुलर और ये दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया, इसको पैरेलल, इससे पैरेलल है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली, इसको पैरेलल और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही रहेगा, पैरेलल में 3x + 4y रहेंगे। सो इक्वेशन होगा 3x + 4y = एक नंबर रहेगा, वो नंबर 2 4 पुट करके मिलेगा 2 4 3 2 are 6 4 4 are 16 3 2 are 6 4 4 are 16 + 6 22 22। सो ये आएगा 22 लेफ्ट साइड में आके -22 विल बी द आवर आंसर। यस, वो लेफ्ट साइड में -22। अभी क्वेश्चन बदल गया, तीसरा क्वेश्चन। पहले में परपेंडिकुलर, दूसरे में पैरेलल, इसी को परपेंडिकुलर इसी को पैरेलल और ये दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली। ये तीनों लाइन में रिलेशन पूछा जाएगा, वेदर 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। द 3 लाइन्स आर पहले इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग, ऐसा तो सिंपल है। ये दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, उसको इसमें पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई होता है, देखो 2 4 2 4 ये सेटिस्फाई नहीं करता है, सो द लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, द 3 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इफ 3 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग तो क्वेश्चन आएगा, 3 इक्वेशन दिए जाएंगे तो ऑप्शन रहेंगे, तीनों लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। पहला आंसर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कॉनकरेंट लाइन, ये ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन फॉर्म अ ट्रायंगल। तीसरा ऑप्शन पैरेलल और चौथा ऑप्शन नन। और कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल कब फॉर्म हो गए, जब तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे अलग अलग पॉइंट में, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। फिर से हमारे में इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एप्लीकेशन आया, पहले जो हमने लिया था इंटरसेक्शन पैरेलल परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट वाला, तो चेक करो दोनों 1/3 एंड -1/1 नॉट इक्वल, फिर 3/1 एंड 4/-1 नॉट इक्वल, फिर 3/3 एंड 4/1 नॉट इक्वल। दिस 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग डिफरेंटली, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को, और ये पहली और तीसरी। ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, जब 3 लाइन 3 जगह इंटरसेक्ट होते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। व्हेन दे आर कॉन्करेंट, मतलब तीनों एक जगह इंटरसेक्ट होते, तो एक दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए पॉइंट, आपके लिए ये बेहतर वे है एक और वे, बट वो आपको नहीं आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए और इसमें पुट करके देखो, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो these lines are passing through one and the same point, मतलब कॉन्करेंट लाइन। फिर भी ये हमारा ये केस है फॉर्म अ ट्रायंगल, ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 लाइंस। तो आपको 3 पॉइंट तुरंत फाइंड करना है और x1 y1 जो हमने किया था उस तरह से एरिया फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन कितने बनते हैं। पैरेलल लाइन के लिए आपको करना क्या है, पैरेलल की लाइन है, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि स्लोप्स इक्वल नहीं है तीनों के, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट टुडेस क्वेश्चंस? यस वेदांत, यस एक बार वापिस समझाना क्वेश्चन। ठीक है। हमने ये पूछा था ये कॉन्करेंट लाइन है या ट्रायंगल फॉर्म करता है और कुछ। देखिए तो ये 3 इक्वेशन मैं लिखता हूं, लेट मी राइट दिस 3 इक्वेशंस। बाकी पहली बातें सब याद आ गई आपको, पहली सब बातें मालूम हो गई। देखिए देखिए ये 2 ऑप्शन की चर्चा करेंगे, पैरेलल लाइन तो नहीं होगी। 3x + 4y - 70,
3x माइनस 4y, ये पहला इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन जो दो लाइन है, x माइनस वाई प्लस 2 0, x माइनस वाई प्लस 2 0, ये तीनों में क्या रिलेशन है? तीनों में क्या रिलेशन है, ये हमारा क्वेश्चन है। या तीनों लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तीनों कॉन्करेंट है, दो तीनों पैरेलल है और कुछ है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है दीज आर। तो आपको क्या करना है, किसी दो को सॉल्व करना है कॉन्करेंट के लिए। पहले ऑप्शन के लिए आपको दो को सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें 2 4 ऑप्शन मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी ये लाइन, अगर ये लाइन भी इससे जाती है तो दिस लाइन्स विल बी कॉन्करेंट, बट हम चेक करेंगे वेदर दिस लाइन इज